Hi. So my earlier class is for the industrial relation. I have discussed about the concept of the industrial relation, the actor of the industrial relation, and the objective of the industrial relation. Now today in the industrial relation lecture series part 2, I am going to give the lecture on the different approaches of the industrial relation. Okay, so today we will discuss the different approaches and the factor influencing the industrial relation. So I am starting that particular topic, the approaches. Approaches of industrial relation. Okay, so first approach. So I am first discussing the major approaches from where the question is asked in BBA, MBA, GRF net as well as in IBPS, SO. Okay, so first approach I am discussing is system approach. First approach is system approach. So in system approach, okay, in system approach, what we are doing in the system approach, so each and every organization or the individual person, okay, actually living in the societal system. Okay, so each and every individual, either it is a person or the organization, are living a continuous and independent individual system where they will grow, they are framing their attitude, their belief systems, okay, their personalities, their all development of all the psychological aspect of that particular person will develop that particular IR, industrial relation. Okay, so that particular industrial system or the approach is developed by John Dunlop in 1958. Okay, that particular system is developed by John Dunlop in 1958. Okay, so in that particular approach, here three assumptions or the three variables they have taken. Three variables. First one, the actor. Actor. Who are the actor? Actor means, here the actor means the employee, employer and the government, those who are shaping the industrial relation. So I think you have cleared about the actor. So I have earlier class I have discussed about the different actor of IR. So actor means here the employee, employer and the government who are shaping the industrial relation. Okay, and next one is context. Context in the sense means where that particular actors, here the context means we are giving the platform. So actor here the employee, employer and the government. Here in the context mean here the employer, employee and the government are now working in a real life platform, like the different industrial market, like technology, like the power of distributions of authority and the responsibility. Means context means here the platform that we are giving to the actors. Here the platform in the sense of industrial market, industrial market or the technology or the power of distribution of authority, power of distribution that will shape the industrial relation. Okay, so next parameter, the next variable is, first one is the actor, second one is the context and third one is the ideology. Third one is the ideology. Ideology, here in ideology we are basically focusing on the actors, how these particular actors ideology basically is the belief system, your personality, your attitude that will guide your action
toward the organization, that how you are behaving toward the organization and contributing toward the IR system. Okay, so system approaches क्या बता रहा है, हियर सिस्टम अप्रोचेस बता रहा है कि हम लोग क्या है, एक सोशल एनिमल की तरह क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, तो हम लोग क्या करते हैं एक सोसाइटी में सोशली हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं इंडिपेंडेंटली, और वही हम लोग को क्या करता है, शेप करता है, वही क्या शेप करता है हम लोग का एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, सारे कुछ हम लोग का शेप करता है वो। तो उसके बेसिस पे क्या किया यहाँ पर जॉन डनलॉप ने, यहाँ पर क्या किया, उसने 3 वेरिएबल को चूज किया। फर्स्ट वन इज द एक्टर। एक्टर क्या बताता है कि भाई हम लोग का एक्टर यहाँ क्या क्या है यार में, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है एंड गवर्नमेंट है, जो क्या करता है रियल में काम करता है टू शेपिंग द IR इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट, मींस हम लोग क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म इन द सेंस ऑफ उसका इंडस्ट्रियल मार्केट दे रहे हैं, उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉलिसीज वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन का, जो विजन है, जो मिशन है, और क्या है टेक्नोलॉजी का भी जो भी चेंजेस है, वो क्या है प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक्टर काम करेंगे टू डेवलप अ सिस्टम। और क्या करेंगे, द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हियर, आइडियोलॉजी मींस द बिलीव्स, योर पर्सनालिटी, योर एटीट्यूड, योर ऑब्जर्वेशन विल शेप द इंडस्ट्रियल रिलेशन और शेप योर एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट अप्रोच। सो सेकंड वन इज unitary approach. Unitary approach. So यूनिटरी अप्रोच क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। वेरी इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच क्या बता रहा है कि यहाँ पर कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। ये लोग एज्यूम कर लिए हैं कि देयर इज नो कंफ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बता रहे हैं, व्हाट यूनिटरी अप्रोच सेइंग, देयर इज अ नो कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यदि बाय चांस कॉन्फ्लिक्ट हो गया तब क्या बताएंगे भाई, यदि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बाय द वे किसी भी तरह से, तो हम लोग इस पे क्या बताएंगे, ये किस कारण हुआ, आइदर इट इज अ मिसलीडिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, यहां पर यूनिटरी अप्रोच बता रहा है कि यहां हर एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग हार्मोनिक वे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्मोनिक वे पे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयर का रिलेशन है, लॉयलिटी है, वो सारे अच्छे हैं। यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है कि नो कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसने एज्यूम कर लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो जस्ट एक मिसकंसेप्शन होगा या मिस रिप्रेजेंटेशन होगा बाय द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉई। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉई हार्मोनिक वे पे काम करते हैं। ये है इस अप्रोचेस का मीनिंग, यूनिटरी अप्रोच। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड अप्रोच जो है वो है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, यहां पर बता रहा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या बता रहा है, यहां बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मींस कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा हो ज्यादा हो, रहना ही रहना है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट का काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होने से क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा मोड़ा रहता है। और कॉन्फ्लिक्ट यदि नहीं रहेगा तो चैलेंजेस नहीं होंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन में, काम नहीं हो पाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, काम नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो कैसे भाई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको तो रिजॉल्व तो करना होगा, अदरवाइज कैसे होगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया एक फॉर्मूला बताया गया है। ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मेन फंडा क्या है, इसका मेन फंडा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा मोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता है, वर्क नहीं होगा। ठीक है, इसने एक फॉर्मूला बताया कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इजीली रिजॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B। ठीक है, यहाँ R इज इक्वल टू कि हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन, R इज इक्वल टू क्या है, यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, IR है। ठीक है, हम लोग कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का, हाउ वी आर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम।
ठीक है, कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। आर मीन्स हाउ वी आर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम। यह फंक्शन ऑफ बी, बी रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग तो पढ़े नहीं है, तो हम थोड़ा समराइज कर देते हैं जस्ट डेफिनेशन के साथ। बाद में जब हम लेक्चर सीरीज ज्वाइन करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, तो वहां पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या, कितने टाइप्स के कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो आर क्या करते हैं, आर क्या है, आर है कि हाउ वी आर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट। कैसे हम लोग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और इधर फंक्शन ऑफ बी में है क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, कलेक्टिव मींस होता है ग्रुप, और बार्गेनिंग मींस क्या होता है, नेगोशिएशन। तो क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग को कैसे हम लोग समराइज कर देंगे इसको, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल आर नेगोशिएटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर हो गया ये डेफिनेशन क्या है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग म्यूचुअल वे पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये है उसका फॉर्मूला आर, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। और एक है इसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ सी। आर का मीनिंग सेम रहेगा कि हाउ वी आर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम। फंक्शन ऑफ सी मींस कि हम लोग किससे रिजॉल्व कर रहे हैं, वी आर रिजॉल्विंग द आईआर प्रॉब्लम थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको सी भी करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके थ्रू कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं इसी को। तो प्लुरलिस्टिक अप्रोच क्या बता रहा है, टोटल एक को समराइज कर देते हैं इसको फटाफट। प्लुरलिस्टिक अप्रोच क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो हम लोग इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। हियर आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ बी, बी मींस है कलेक्टिव बार्गेनिंग, और यहाँ सी मींस है रिजॉल्विंग थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। क्लियर हो गया ये आई थिंक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच, फोर्थ। साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पहले साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होगा, कब क्रिएट होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छा तरीके से स्टडी करेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्यों हम लोग को यहाँ ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो क्या होता है वहां पर, सो दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, हैविंग द डिफरेंट माइंडसेट विद द डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो वहां पर यदि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर डिफर करता है या गैप होता है, तो क्या होगा ना वहां पर, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं हो पाएगा, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन आयर नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल अप्रोच बता रहा है कि हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका वैल्यूज क्या है, सो दैट वी कैन क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन इंप्लीमेंट द गुड आयर रिलेशन एज पर दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, साइकोलॉजिकल हो गया, फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या बता रहा है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है, हम लोग जितने भी आदमी या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, सब सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग का जो भी एटीट्यूड, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी हम लोग का परसेप्शन, पर्सनालिटी, जो भी लर्निंग है, थ्रू कहाँ से होता है, थ्रू एक्सपीरियंस से वी आर कलेक्टिंग, थ्रू द सोसाइटी। हम लोग कहाँ से करते हैं, हम लोग थ्रू सोसाइटी कलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ सोशियोलॉजिकल अप्रोच में बता रहा है कि हम लोग का जो भी जनरेशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सोसाइटियल एस्पेक्ट को देखेंगे कि भाई जिस जगह में हम लोग कंपनी लगा रहे हैं, जहाँ से एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, वहाँ का सोसाइटियल एस्पेक्ट है कैसा,
ठीक है, वहाँ का पीपल सब है कैसे, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका बिलोंगिंगनेस कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है, सारे चीज को देखेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, जहां पर कंपनी लगा दी है यदि उस जगह पर हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जिस तरह का एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे टाटा नैनो वाला केस हुआ था, सिंगूर वाला, वो अच्छी तरीके से ये सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को नहीं चेक किया, वो सोशोलॉजिकल प्लस पॉलिटिकल एस्पेक्ट था वहां पर। तो सोशोलॉजिकल हमको हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते, वहां पर माइंडसेट को अच्छा से रीड नहीं कर पाया, जिसके कारण वो फेल्यूर हो गया वहां पर। कंपनी गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं ब्लेंड कर पाया टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज के साथ, जिसके कारण हो गया क्या, क्या हो गया वहां पर अच्छा तरीके से नहीं हो पाया इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो अप्रोचेस है, नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ना, ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरीज है, वो जो पहले किसने डेवलप किया था इस टाइप का थ्योरी ह्यूमन रिलेशन को, एल्टन मायो ने। ठीक है, एल्टन मायो उसका डेवलपर थे, एल्टन मायो। ये पता ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बता रहा है कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, ग्रुप और ग्रुप क्या करता है, मेजर रोल प्लेज करता है टू शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन को। क्या करता है यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बता है। इसका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था होथोन एक्सपेरिमेंट, ये अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यदि कभी आप लेक्चर अपलोड किए होथोन एक्सपेरिमेंट पे तो हम फिर डिस्कस करेंगे क्या है वो एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या बता रहा है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स और ग्रुप के मेंबर के साथ काम, जो टीम मेंबरशिप का जो काम होता है वो अच्छा से होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, पूरा चारों तरफ कोलैप्स हो जाएगा सारा चीज। इसलिए ह्यूमन के साथ हम लोग क्या करना है, एवरी एम्प्लॉइज के साथ हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करना है, एक ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि हार्मोनिक वे पे सब काम हो सके। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या बता रहा है कि इनफॉर्मल ग्रुप एंड द ग्रुप ऑफ पीपल और द टीम विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी in the organization to accomplish your objectives or the vision of the organization. Okay, so these are the some of the main approaches to the industrial relation. Okay, so now we'll again start the Gandhian approach. Okay, another approach is Gandhian and the last one is the radical approach or the Marxist approach. So what is Gandhian approach? The name is suggesting that this particular theory, this particular approach is developed by Mahatma Gandhi. So in this approach, the non-violence, गांधी का सबसे क्या था, नॉन वायलेंस। भाई स्ट्राइक भी करना है तो किससे करना है, नॉन वायलेंस तरीके से करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना है तो किससे मेंटेन करना है भाई, नॉन वायलेंस तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन वायलेंस, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन वायोलेंस के हिसाब से देखेंगे इसको। इसका मेन फंडा जो गांधीयन अप्रोच का क्या है, नॉन वायलेंस। किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो स्ट्राइक ही कर रहे हैं ना क्यों, या कुछ भी करे, किसी भी तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करें, लेकिन नॉन वायलेंस, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे और मेंटेन करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडिकल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच। हम लोग को सबको पता है कि जो मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजीज होते थे ना, देखो मार्क्सिस्ट में यहाँ पर क्या होता था, यहाँ मार्क्सिस्ट में क्लास के ऊपर क्या होता है, क्लास, they divided the whole system into classes और क्लास, क्या क्या लोगों ने डिवाइड कर दिया होल सिस्टम को क्लास के ऊपर। क्लास इन द सेंस ऑफ, इधर यहाँ पर क्या है, एक है एम्प्लॉय, एक क्या है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इधर लगा दिए, यहाँ पर एम्प्लॉय कर दिए। एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर जो है ये है कैपिटलिस्ट, ये क्या है कैपिटलिस्ट, और एम्प्लॉइज को माना यहाँ एक्सप्लॉयटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो रेडिकल अप्रोच, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बता रहा है कि जो एम्प्लॉयर है, दोज हु आर द एम्प्लॉयर, वो क्या है कैपिटलिस्ट, जिसके पास क्या है मनी एंड पावर है, और जो एम्प्लॉइज है वो क्या है एक्सप्लॉयटिव, क्या है वो लोग किसी भी तरह से उसको छेड़खानी कर सकते हैं। एक क्या है प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का पार्ट है, वो प्रोडक्शन का क्या है पार्ट है, ये लोग क्या है प्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एक इनपुट है, ये मान के चल रहा था ये लोग। ठीक है,
तो इसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कैपिटलिस्ट, इसने क्लास के ऊपर डिवाइड कर दिया सबको। जो क्लासेस जो थे, क्या हुआ ना, क्लास में इस पे क्या हुआ, कंफ्लिक्ट होने लगा डिफरेंट क्लासेस में, कैपिटलिस्ट एंड द एम्प्लॉइज जो लोग की ऑफ प्रोडक्शन थे उन लोग के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। तो क्या हुआ ना, तो आया सही से स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो मार्क्सिस्ट का जो अप्रोच था उसने क्या बताया कि भाई स्टेबल तो करना होगा किसी भी तरीके से। उसने एक एजम्पशन दिया कि देखिए भाई कैपिटलिस्ट तो जो कैपिटलिस्ट थे उन लोग को बोला गया कि एजम्पशन लिया गया कि यदि एम्प्लॉइज आपके बगैर काम चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कंपनी बिना एम्प्लॉइज के नहीं चल सकता है, ये आप मान के चलिए। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन मेंटेन देयर सर्वाइवल एज वेल एज क्या करेंगे, वो अपने लाइफ को अच्छा से जी सकेंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं रेडिकल अप्रोचेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा हम समझाएंगे नहीं, जस्ट उसका की एरियाज को देख लेंगे, जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आईआर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आईआर, आईआर को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे थे। ठीक है, इसमें एकदम फटाफट फैक्टर को देख लेते हैं। इकोनॉमिक है, सोशल है, सेकंड थर्ड वन क्या है, पॉलिटिकल है, फोर्थ वन क्या है, टेक्नोलॉजिकल है। बस ये 4 मेजर फैक्टर है। सो आज को हम लोग डिस्कस कर दिए मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज, जो अप्रोचेस थे उसको डिस्कस कर दिए। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ जाएंगे भी। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के वो लोग सारे पढ़ के आए हुए हैं, जो पेस्टल एनालिसिस है उसमें सारे चीज रहते हैं जो मेंटेन करने के लिए। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तो आप लोग का जो भी लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं, मेरा अर्लियर जितने भी क्लासेस हुए हैं अच्छा ही सब मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि अच्छा मिलते रहना चाहिए, इस तरह से लाइक वगैरह मोटिवेट होते रहे, और आप लोग इस लॉकडाउन पे सब सेफ रहे और घर पे रहे। थैंक यू वेरी मच।